नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस ऐतिहासिक पल की जिसने भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में एक नई पहचान दिलाई है। भारत की पहली निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रच दिया है। यह केवल एक रॉकेट लॉन्च ही नहीं बल्कि भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर में नई शुरुआत है। आइए जानते हैं विक्रम-1 इतना खास क्यों है और यह मिशन भारत के भविष्य को कैसे बदल सकता है। स्काईरूट एरोस्पेस की स्थापना 2018 में हैदराबाद में हुई। इस कंपनी की शुरुआत इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों पवन कुमार चंदाना और नागा भरत डाका ने की। उनका सपना था कि भारत में भी ऐसी निजी कंपनी बने जो दुनिया भर के छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेज सके। 2020 में भारत सरकार ने स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया और यहीं से स्काईरूट जैसी कंपनियों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। आइए अब विक्रम-1 की लॉन्चिंग प्रक्रिया को देखते हैं और इस पल के साक्षी बनते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And we have liftoff of Vikram-1, India's first private orbital launch vehicle, and we have great views coming from the second angle. And isn't this quite exciting? Vikram-1 ने अपनी उड़ान भरी है। प्रथम चरण का प्रक्षेपण Vikram-1 ने प्रक्षेपण पथ को लांघकर आकाश को भेजने का निर्णय ले लिया है एक ब्रह्मास्त्र की तरह। That's very true, Sriyash Mathil, and also look at the sheer power that Stage 1 is producing. This is, we have two of our major prime mission objectives completed, which was successful ignition and safe our clearance. That's right, and we are coming up on max Q now, which is the period of maximum aerodynamic pressure, where the vehicle faces its largest aerodynamic loads as it flies through the zone at Mach 1.5 at an altitude of nearly 9 kilometers. विक्रम-1 ने सफलतापूर्वक पार कर लिया है और दल काफी उत्साहित है। इस समय विक्रम-1 प्रथम चरण के आगे बढ़ रहा है और हमें श्रीहरिकोटा पोर्ट में पृथ्वी स्टेशन से मजबूत दूर संकेत मिल रहे हैं। काफी अच्छी खबर है। That's right. We are at a downrange distance of 22 kilometers with an altitude of 34 kilometers. And on your screens right now are excellent on-board camera views from the vehicle. And we can also see quite nominal chamber pressure values on the MCC screen. The vehicle is currently at an altitude of 50 kilometers. और यहाँ पे प्रथम चरण का प्रतिकरण हो चुका है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है। This is quite a major achievement for the nation with the vehicle successfully separating stage 1 and the ignition of stage 2 as well. द्वितीय चरण अपना सफलतापूर्वक कार्य पूरा कर रहा है और प्रथम चरण का दहन अथवा प्रतिकरण समाप्त हो चुका है। The vehicle is at an altitude of 89 kilometers, traveling at 2.6 kilometers per second. Of course, our target velocity for today is 7.6. We've just heard call out that the S2 performance or the stage 2 performance is nominal. ये एक ऐतिहासिक क्षण है पूरे भारत और निजी अंतरिक्ष यात्रा का। This vehicle has crossed 100 kilometers of altitude, which is the notion of edge of space, and we have reached space, guys. Congratulations, is in space. हमारा यान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। And we've had callouts of separation of the payload fairing. We have successful payload fairing separation. It's nearly at an altitude of 120 kilometers, and the protective fairing is no longer required and has been clearly separated from the launch. और यहाँ पे द्वितीय चरण का भी प्रतिकरण संपन्न हो चुका है और तृतीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है। That's right, Akhil. We've had successful ignition of stage 3.
vehicle is currently at 157 kilometers above the Earth's surface. It is 355 kilometers downrange, traveling at nearly 4 kilometers per second. Now, the telemetry will switch over from Shah to Port Blair and further to Bogor. अब यान अपनी अंतरिक्ष यात्रा पर निकल चुका है। तृतीय चरण का प्रज्वलन चालू है और Plus 4 minutes. उसकी प्रतिक्रिया नियमित रूप से चल रही है। And as you can see on your screens, we have near exact following of the intended trajectory. The two dotted lines on your screen essentially indicate the current performance of the vehicle, and it closely matches with prediction. This is on your screen on board from stage 3. What you see is the rocket plume and the nozzle and Earth, our home. What a beautiful view! क्या सुंदर दृश्य है हमारी पृथ्वी का। S3 performance normal. और तृतीय चरण का परफॉर्मेंस अब नॉर्मल है, या कि सामान्य रूप से तृतीय चरण का संचालन प्रारंभ हो चुका है और चल रहा है। That's right. We've had call out that the stage 3 performance is nominal. Plus 5 minutes. So stage 3 has a propellant loading of 2.5 tons, and we've had burnout of 2022 में स्काई रूट ने विक्रम यस नाम का सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था, जो भारत का पहला निजी रॉकेट था। और अब विक्रम 1 ने पहली बार पृथ्वी की कक्षा तक सफल उड़ान भरकर नया इतिहास बना दिया। आखिर विक्रम 1 है क्या? यह एक ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। इसका उद्देश्य छोटे उपग्रहों को कम लागत और कम समय में अंतरिक्ष तक पहुंचाना है। यह लगभग 350 किलोग्राम तक का पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने की क्षमता रखता है। आधुनिक कार्बन कंपोजिट संरचना है, 3 स्टेज डिजाइन है। छोटे सैटेलाइट्स के लिए डेडिकेटेड और राइड शेयर दोनों प्रकार की लॉन्च सुविधा है। कम लागत और तेज लॉन्च की तैयारी है। स्काई रूट का लक्ष्य है कि भविष्य में सैटेलाइट लॉन्च उतना ही आसान हो जाए जितना आज कल हवाई यात्रा। 18 जुलाई 2026 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से विक्रम 1 ने उड़ान भरी। कुछ मिनटों बाद ही रॉकेट ने पृथ्वी की कक्षा में सफल प्रवेश किया। इस मिशन में कुल 6 पेलोड सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किए गए हैं। यही वह क्षण था जिसने भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में पहुंचा दिया जहां निजी कंपनियां स्वयं ऑर्बिटल रॉकेट विकसित और संचालित करती हैं। पूरे देश ने इस सफलता का जश्न मनाया। मेरे पास शब्द ही नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्काई रूट की टीम को बधाई देते हुए इसे भारत के युवाओं और निजी नवाचार की बड़ी उपलब्धि बताया। आज दुनिया में हजारों छोटे सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं। इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। पहले भारत मुख्य रूप से इसरो पर निर्भर था, अब इसको स्काई रूट जैसी निजी कंपनियां भी यह सेवा देंगी। इसके फायदे होंगे कि भारत का वैश्विक स्पेस मार्केट में बड़ा हिस्सा होगा। विदेशी कंपनियां भारत से सैटेलाइट लॉन्च करा सकेंगी। युवाओं के लिए नई नौकरियां मिलेंगी। नई तकनीक और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान करेगी। स्काई रूट यहीं रुकने वाला नहीं है। कंपनी भविष्य में विक्रम 2 और उससे अधिक क्षमता वाले रॉकेट विकसित कर रही है। विक्रम 2 लगभग 900 किलोग्राम तक पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसे भारत वैश्विक कमर्शियल लॉन्च मार्केट में और मजबूती प्रतिस्पर्धा बढ़ सकता है। आज भारत की निजी कंपनी अपने दम पर अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित कर रही है। यह केवल तकनीक की जीत नहीं, यह भारत के सपनों की उड़ान है।
विक्रम-1 मिशन के बाद सीईओ पवन कुमार चंदाना ने बताया कि उनकी टीम की औसत आयु केवल 28 वर्ष है। जरा सोचिए, जिस टीम की औसत उम्र केवल 28 साल हो, वही टीम भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक पहुंचा देती है। यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि ही नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जब भारत के युवाओं को अवसर और विश्वास मिलता है तो वे इतिहास रच देते हैं। विक्रम-1 केवल एक रॉकेट ही नहीं, बल्कि नए भारत के सपनों, विज्ञान और आत्मविश्वास की उड़ान है। यह संदेश है कि यदि अवसर मिले तो भारतीय युवा दुनिया को बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।